A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are doing well and concentrated toward your studies and watching the video on a regular basis. Children, in this situation, in this pandemic situation, this video will definitely help you a lot for preparation of your for board examination. And in my every videos, I always motivated the children to be focused toward your goal, and your goal is passing the board exam with the good marks, with the highest marks, and not only pass but also scored high marks and be in the rank list, be in the top most list of the every school and colleges. Okay, so children, in our videos we are discussing the chapter attitude and social coordination. We have learned maximum thing about the attitude, and we are now about to be end of this chapter, and the topic which I am going to discuss with you is pro-social behavior. This is the last topic of this chapter, pro-social behavior. In terms of the revision, I should make you recall what are the things we have discussed in this particular chapter. We discussed about the attitude components, characteristics, feature, attitude formation, what are the process in attitude formation, and the factors influencing attitude formation. We learned about attitude change, process of attitude change, and the factors influencing attitude change. We read about prejudice and discrimination, learning ways to control it. We also discussed about impression formation and attribution. We understand it in a proper manner, that what is impression formation and what is attribution. After that, we have discussed about that behavior in the presence of other. लोगों के प्रेजेंट रहने पे क्या चेंजेस होते हैं बिहेवियर में. We study about some of the phenomena, some of the term and concept like social facilitation, social inhibition and social loafing. So आगे इसी में हम लोग पढ़ेंगे. आज एक न्यू फेनोमेना और कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, विच इज अ pro-social behavior. Pro-social behavior is a very beautiful concept, children, and very easy to understand. It is nothing like a very typical or very hard to understand. So pro-social behavior क्या है? Pro-social behavior is a behavior where you help the needy person and without thinking anything in return. So pro-social behavior क्या है? किसी की मदद करना और ऐसे लोगों की मदद करना जो ज़रूरतमंद है, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है जेन्युइनली, और डोंट थिंक एनीथिंग इन रिटर्न. सो दैट इज अ प्रो सोशल बिहेवियर. सो प्रो सोशल बिहेवियर वेयर यू हेल्प द अदर पर्सन without thinking anything in return. Basically, pro-social behavior is a behavior helping the needy person, helping the needy person, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, बट उसके रिटर्न में कुछ नहीं सोचना. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? द टू थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस वन. फर्स्ट, द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, and then we have to study about the characteristics
what are the different features and characteristics of pro-social behavior. Then we have to study about factors influencing pro-social behavior. So 3 things we have to understand. First आप meaning पढ़ोगे, then characteristics, और next factors. Factors influencing pro-social behavior. So ये 3 चीजें आपको पढ़ेंगे, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रो-सोशल बिहेवियर. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग इसमें मीनिंग पढ़ेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो-सोशल बिहेवियर. तो अभी तो मैंने बताया, तो थोड़ा सा और डिटेल में से डिस्कस करेंगे. तो आई एम गोइंग टू रैप इट. आई वांट फ्रॉम यू ऑल टू नोट इट डाउन कि हमें क्या चीजें इसमें डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग. What is the meaning and the introduction कह सकते हो, या basic concepts of the pro-social behavior. See, throughout the world, doing good to other and being helpful is described as a virtue. All religion teaches that we should help those who are in need. This behavior is called helping or pro-social behavior. Pro-social behavior is very similar to altruism, which means doing something for or thinking about the welfare of others without any self-interest. So, altruism word से ये related है pro-social behavior, and जिसका मतलब ये होता है कि doing something for or thinking about welfare of other without any self-interest. Actually ये word जो altruism है, pro-social behavior is related to the word altruism. Altruism is derived from the Latin word alter. Alter word एक Latin word है जिससे ये derived हुआ है, जिसकी meaning होती है other. Okay? Alter is the Latin word which other, and the opposite of ego. Ego का opposite होता है self. Okay? Which means the self. The opposite of ego, which means the self. So that is why means doing something about the other, doing something and thinking about the welfare of other person. जैसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल है प्रो सोशल बिहेवियर के, लाइक शेयरिंग द थिंग, कोऑपरेटिंग विद अदर, हेल्पिंग ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, शोइंग सिंपैथी और डूइंग फेवर्स टू अदर एंड मेकिंग चैरिटेबल डोनेशन. But that donation should be based on not expecting anything in return. So basically the simple meaning of pro-social behavior is helping the needy person, and it is related to the word altruism, which means alter, and which means for other. Okay, and it is something you can say that the समथिंग विच इज आप कह सकते हैं अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में हम सोच रहे हैं, और वो जो सोच है हमारी वो जेन्युइन होनी चाहिए. ठीक है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मीनिंग तो हमने समझ लिया, मैंने बोला था इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर. तो मीनिंग तो हमने समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. द फर्स्ट इज एम टू बेनिफिट or do good to another person or other person. तो first है doing good for another person, दूसरों के लिए अच्छा करना, ये pro social behavior है, doing good for another person. Second, be done without expecting anything return. Expectation नहीं रखना है, no expectation. आपने
आई थिंक फ्रेज सुना होगा, एक मुहावरा सुना होगा कि जब हम इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि किसको दिया, क्या दिया। ये नहीं होना चाहिए कि इस हाथ से दिया और इस हाथ से लिया। तो ये प्रो सोशल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। सो नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। थर्ड, बी डन विलिंगली बाय द पर्सन एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेशर। ये विलिंगली होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से किसी की मदद कर रहे हो। ये नहीं हो कि कोई प्रेशर है आपके ऊपर, किसी ने आपको प्रेशराइज किया है मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो विलिंगली होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। लास्टली, इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी और कॉस्ट टू द पर्सन गिविंग हेल्प। या प्रो सोशल बिहेवियर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी भी लाता है, कोई ना कोई तरीके का, किसी न किसी तरीके का डिफिकल्टी लाता है या कॉस्ट लगता है हेल्प करने में। ऑब्वियसली अगर किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आप मनी स्पेंड कर रहे हो तो आपको कॉस्ट तो लग रहा है, ओके। या कभी कभी किसी की मदद करने में हम अपने आप को भी सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रो सोशल बिहेवियर के। दूसरों का अच्छा करना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, विलिंगली करना, प्रेशर में नहीं, नॉट अंडर प्रेशर, प्रेशर में नहीं, कोई प्रेशर ना हो, कोई फोर्स ना हो आपको कि आपको भलाई करनी ही है। डिफिकल्टी होती है दोज हु आर डूइंग द प्रो सोशल बिहेवियर, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन डोनेट अ लॉट ऑफ मनी दैट इज ऑब्टेन्ड इलीगली with the idea that his or her photograph and name will appear in the newspaper, this cannot be the pro-social behavior. Although the donation may do good to many people. In spite of the great value and importance attached to pro-social behavior, people do not show such behavior very often. जल्दी लोग नहीं शो करते हैं। Immediately after the Mumbai blast जो हुआ था, तो the community stepped toward to help the blast victim in any way they could. By contrast, on an earlier occasion, nobody came forward to help a girl on a moving suburban train in Mumbai when her purse was being snatched. A very two contradictory situations were spoken here. एक सिचुएशन है मुंबई ब्लास्ट था जहाँ पे बहुत से लोग, कम्युनिटी आई, लोगों के जो ब्लास्ट जो फैमिलीज अफेक्टेड हुए उनकी हेल्प के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज आई। बट रोड पे अगर एक छोटी सी चोरी हो रही, स्नैचिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, अ गर्ल वॉज वेरी मच एफरेड एंड टेरिबल विद, कुछ ऐसा हो रहा है गर्ल्स के साथ, तो नोबडी इज देयर टू हेल्प दैट। तो रीजन है क्योंकि उनको ये लगता है कि ब्लास्ट जो पीपल अफेक्टेड हुई हैं, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमारा नाम होगा, हमारा फेम होगा, हमारा फेम होगा। तो इस वजह से क्या होता है, लोग प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं। बट उस लड़की को जिसकी चेन को स्नैच किया गया, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा क्या होगा, मतलब उसमें हमारा कोई नाम नहीं होगा, हमारा कोई फेम नहीं होगा, नोबडी रिकॉग्नाइज मी, नोबडी लाइक सपोर्ट मी। तो ये चीजें हैं। तो सिचुएशन देख के भी लोग प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं, विच इज नॉट गुड एंड विच इज नॉट कॉल्ड एज प्रो सोशल बिहेवियर। ऑब्वियसली उसे हम प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कहेंगे। The other passenger did nothing to help and girl was thrown out of the train. Even the girl was lying injured on the railway track. People living in the building around the area did not come to help her. So I told you this was the situation. ऐसा होता है। तो I hope you understand about the meaning of pro-social behavior, the characteristics, and with the example you will be able to understand it. The difference between helping the needy or how you are working according to the situation. Are you really helping the needy person? Genuinely genuine help है या it's a kind of showcase or it's a kind of show off? Okay, in order to just get a name and fame. तो जब भी हम कोई भी चीज या कोई भी हेल्प अगर एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं तो वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं होता है। This thing should be clear in your mind, children.
नाउ आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रो सोशल बिहेवियर। फैक्टर्स हैं जो कि प्रो सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्कस्ड। Factors. What are the factors which influencing the pro-social behavior? So there are so many factors and so many points. So one by one we will discuss the points, children. The first point, pro-social behavior is based on an inborn. So yes, children, there are so many factors which influence the pro-social behavior. The first factor is inborn or natural tendency. Inborn or natural tendency. किसी लोगों में pro-social behavior की जो tendency होती है वो inborn होती है, natural होती है, वो already person में present होती है। वो it is not like that it is get affected by the environment or the situational factor or any kind of external factor. Persons are like उनमें inborn होता है, natural tendency होती है लोगों की मदद करना, and they feel more happy and more satisfied when they help the other person. वे जब जो ज़रूरतमंद होते हैं वो उनकी जब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड होता है लर्निंग। प्रो सोशल बिहेवियर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग। हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर लर्न भी करते हैं। सी चिल्ड्रन, मैक्सिमम थिंग्स वी लर्न, ओके। Individuals who are brought up in a family environment that set example of helping other, emphasizes helping as a value, praise helpfulness, and showing more pro-social behavior than individuals who brought up in a family environment who devoid of these features. So pro-social behavior learn भी होता है। Learn कैसे होता है? Depend on the family environment. Family का environment कैसा मिल रहा है बच्चे को? बच्चा ऐसी फैमिली में है जहाँ पे अदर मेंबर्स जो हैं फैमिली के, वे प्रो सोशल बिहेवियर को इन्हांस कर रहे हैं, ओके, दे ऑल्सो हेल्पिंग द अदर एंड, और वही एक बच्चा है जहाँ पे इन सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो क्या सीखेगा? वो नहीं सीखेगा प्रो सोशल बिहेवियर। पर जहाँ बच्चे को सिखाया जा रहा है कि हेल्पिंग करना एक वैल्यू होता है, हमें हेल्पफुलनेस को, जो आपकी मदद करता है उसको प्रेज करना चाहिए, से थैंक यू, ओके, कुछ रीडिंग वर्ड्स हमें सिखाए जाते हैं, ओके, दोज हु हेल्प यू तो यू शुड से थैंक यू, ओके। तो ऐसे इन्वायरमेंट में हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर लर्न करते हैं। तो किसी में प्रो सोशल बिहेवियर इनबॉर्न होता है, कुछ प्रो सोशल बिहेवियर लर्न करते हैं। द थर्ड फैक्टर है प्रो सोशल बिहेवियर को जो डिटरमाइन कर रहा है वो है कल्चरल फैक्टर। यस चिल्ड्रन, वेरी मच ट्रू। हमारा कल्चर बहुत डिटरमाइन करता है प्रो सोशल बिहेवियर को, हम जिस भी कल्चर में रह रहे हैं। Some culture actively encourage people to help the needy and de-stress. In culture that encourage independence, individuals will show less pro-social behavior because people are expected to take care of themselves and not to depend on help from others. Individuals in culture suffering from a shortage of resources may not show a high level of pro-social behavior. See, culture factor also determine the pro-social behavior. बहुत सारे factor हैं and see children, there are different kind of culture. बहुत तरीके के कल्चर होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हम डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बात करें। जैसे कोई कल्चर है जहाँ पे ये टेंडेंसी नहीं है कि हमें दूसरों से हेल्प लेनी है, ओके, देयर इज अ टेंडेंसी दैट एवरीथिंग आई विल डू बाय माई सेल्फ, एक इंडिपेंडेंस की टेंडेंसी है, तो वहाँ पे प्रो सोशल, वहाँ के बच्चे भी वही चीज़ें लर्न करते हैं, उनका कल्चर यही होता है, तो दे यूजली डोंट हेल्प अदर, ओके, दे रिलाई ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, एंड डू नॉट टेक द हेल्प ऑल्सो। तो ये चीज़ें होती हैं। कुछ कल्चर होते हैं जहाँ
इन चीज़ों को इनकरेज किया जाता है कि नहीं, हम वी शुड टेक द हेल्प ऑफ अदर एंड वी शुड गिव द हेल्प टू अदर, और ये दूसरों को हमें मदद करना चाहिए। तो द अदर मेंबर्स ऑल्सो लर्न दैट वन। कुछ कल्चर होते हैं, कुछ कल्चर के लोग होते हैं दोज हु हैव द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की कमी होती है, तो उसकी वजह से भी वो हेल्प नहीं कर पाते। ऑल्दो उनमें इनबॉर्न नेचुरल टेंडेंसी है प्रो सोशल बिहेवियर की, बट उनके कल्चर फैक्टर की वजह से वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं आ पाता। आप बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि अपने कल्चर की वजह से वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि चाहते हैं कि जो बेगर्स हैं उनकी हेल्प करें, उनको घर दें, या जो एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, तो उनकी केयर करें, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है कि जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से वे लोग उन चीज़ों को कर सकें। तो कल्चर फैक्टर ऑल्सो डिटरमाइन द प्रो सोशल बिहेवियर। नाउ नेक्स्ट है सोशल नॉर्म्स। कुछ सोशल नॉर्म है जो भी डिटरमाइन करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को। आई होप चिल्ड्रेन आप समझ रहे होंगे क्या चीज़ें मैं समझाना चाह रही हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो सोशल नॉर्म, ओके, सोशल नॉर्म्स भी फैक्टर है प्रो सोशल बिहेवियर के लिए। प्रो सोशल बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड व्हेन द सिचुएशन एक्टिवेट सर्टेन सोशल नॉर्म दैट रिक्वायर हेल्पिंग अदर। ओके, सोशल नॉर्म से प्रो सोशल बिहेवियर एक्टिवेट हो जाता है, यानी प्रो सोशल बिहेवियर तब भी दिखता है जब कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे सोशल नॉर्म्स में। सबसे पहला है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। दूसरा है रेसिप्रोसिटी, द सेकेंड इज रेसिप्रोसिटी, एंड थर्ड इज इक्विटी। ये 3 पॉइंट्स आर कम अंडर दी सोशल नॉर्म। ये तीनों पॉइंट बच्चों सोशल नॉर्म्स में आएगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेसिप्रोसिटी एंड इक्विटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो नॉर्म है ये कहती है वी शुड हेल्प एनीवन हु नीड हेल्प विदाउट कंसिडरिंग एनी अदर फैक्टर। मतलब जिन्हें जरूरत है उनकी हेल्प करना, दैट इज अवर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सी, वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम लोग सोसाइटी के ही पार्ट हैं, तो सोसाइटी के पार्ट होने की वजह से हमारा कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नॉर्म्स है, सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं कि जिनको मदद चाहिए उनको मदद करना है। जैसे अभी क्या है, अभी कोविड हो रहा है, तो दिस पैंडेमिक सिचुएशन में लोग आ रहे हैं, अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्रो सोशल बिहेवियर दिखता है। इसके बाद रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी तब होता है जैसे वी शुड हेल्प दोज पर्सन हु हैव हेल्प अस इन द पास्ट। बेसिकली रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि उसने मेरी मदद की है तो मुझे भी उसकी मदद करनी होगी या करनी चाहिए, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी, अगर उसने मेरी मदद की है तो मुझे भी उसकी मतलब हेल्पिंग देम इन रिटर्न, ठीक है। इक्विटी, वी शुड हेल्प अदर व्हेनेवर वी फाइंड दैट इट इज फेयर टू डू सो। इक्विटी जो प्रिंसिपल है ये इक्वालिटी पे बेस करता है, फेयर और अनफेयर की बात करता है। ये फेयर की बात करता है, मतलब ये कहता है कि हम तब प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं जब हमें लगता है कि ये सही है करना, या इस जगह पे ये सही है, तो प्रो सोशल बिहेवियर दिखता है। इस जगह पे सही है का क्या मतलब है बच्चों? इस जगह पे सही है प्रो सोशल बिहेवियर का क्या मतलब है? इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्विटी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जो 2 सिचुएशन थे कि एक था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो लोग आए मर, बट उस गर्ल की मदद नहीं किया जिसे जिसके ज्वेलरी को स्नैचिंग किया गया, तो वो भी एक इक्विटी था प्रिंसिपल, वो भी जेन्युइन था, आपको मदद करनी चाहिए बट नहीं किया, ठीक है। वो एक अलग फैक्टर है, पर जो हम बताना चाह रहे हैं विच वी आर डिस्कसिंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया तो कंफ्यूज नहीं होंगे, उस एग्जाम्पल को नहीं लेंगे यहाँ पे,
वो बॉम्ब ब्लास्ट एंड दैट गर्ल, ठीक है। मैं फिर से वापस यहाँ पे आती हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को? एक तो इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, पर्सन में खुद की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो हेल्प करता है। देन कल्चर फैक्टर भी डिटरमाइन करता है। पर्सन लर्निंग इन्वायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। उसी तरह सिमिलरली सोशल नॉर्म्स भी डिटरमाइन करते हैं। पर्सन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, इसलिए प्रो सोशल बिहेवियर करता है। रेसिप्रोसिटी, उसने मेरी मदद की इसलिए वो प्रो सोशल बिहेवियर करता है, हेल्पिंग इन रिटर्न। एंड इक्विटी, जब पर्सन को फियर लगता है कि मदद करनी चाहिए, ये सही है, तो फिर वो उसकी हेल्प करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ये ले सकते हैं, बहुत से लोग बेडर्स की इसलिए नहीं हेल्प करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इट इज़ नॉट फेयर टू डू सो, क्योंकि दे हैव उनको पता है कुछ लोगों को इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन है कि इनका एक अपना ज्ञान होता है, तो दे डू इट फॉर पर्पज only. So that is why they do not show the pro-social behavior there. So why the equity principle है, यहाँ पे equity principle, क्योंकि उन्हें लगता है कि fair नहीं है, the person is not right, ये सही नहीं है, तो वो उसकी help नहीं करते। जहाँ उनको लगता है कि हेल्प करना चाहिए करते हैं। एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है कि एक पर्सन है जिसने अपनी सारी चीजें अपने द पर्सन हु हैव लॉस्ट ऑल हिज बिलोंगिंग्स इन द गैम्बलिंग एंड देयर इज अनदर पर्सन हु लॉस्ट ऑल हिज बिलोंगिंग इन अ नेचुरल डिजास्टर। एक पर्सन है जिसने नेचुरल डिजास्टर में सारी चीजें खो दी और एक था जिसने गैम्बलिंग में। तो क्या आपको फेयर लगता है, किसकी आप हेल्प करेंगे? जो नेचुरल डिजास्टर में वाले पर्सन को आप हेल्प करोगे, बट ऑब्वियस। तो दैट इज अ इक्विटी प्रिंसिपल। आगे बढ़ेंगे। और क्या ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि प्रो सोशल बिहेवियर अफेक्ट होता है? 4 हमने पढ़ा। 5th इज एक्सपेक्टेड रिएक्शन। एक्सपेक्टेड रिएक्शन, यस चिल्ड्रन, रिएक्शन ही अफेक्ट करता है प्रो सोशल बिहेवियर को। See, pro-social behavior is affected by the expected reaction of the person who is being helped. For example, people might be unwillingly to give money to a needy person because they feel that the person might feel insulted or may become dependent. तो हम जिसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर दिखेगा कि नहीं दिखेगा या एक्टिवेट होगा कि नहीं, ये जिसकी मदद की जा रही है उसके रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी हम लोग नहीं मदद करते क्योंकि हमें लगता है कि वो पर्सन हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा, या फिर वो क्या सोचेगा, वो इंसल्ट सोचेगा, वो कुछ और ना सोचे। द पर्सन डज नॉट टेक अवर जेन्युइन हेल्प इन अनदर वे, तो इसलिए भी हम प्रो सोशल बिहेवियर एक्टिवेट नहीं होता। आगे, प्रो सोशल बिहेवियर बहुत सी चीजों से रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि बाई स्टैंडर्ड, ठीक है, बाई स्टैंडर्ड ये भी एक रीजन है जिससे कि प्रो सोशल बिहेवियर रिड्यूस हो जाता है। प्रो सोशल बिहेवियर, बाई स्टैंडर्ड मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ और बहुत से लोग खड़े हैं, बाई स्टैंडर्ड मतलब एक तरह से भीड़ जो देख रही है। तो अगर बाई स्टैंडर्ड 8 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमने पढ़ा था सोशल लॉफिंग में भी ये कंसेप्ट। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि 10 लोगों के प्रेजेंट होने पे हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों मदद करूं, अगला तो है। जैसे अगर घर में पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम अपने बेटों के सामने या बच्चों के सामने उन्होंने रखा, तो हर एक बेटा या हर एक बेटी ये सोचती है मैं क्या करूं, बाकी दूसरे बच्चे भी तो हैं, वो आगे बढ़े, वो आगे करें। तो दैट इज अ बाई स्टैंडर्ड। बाई स्टैंडर्ड जब ज्यादा हो जाता है, बाई स्टैंडर्ड को एक हिंदी में एक वर्ड है जैसे कि तमाशा देखने वाले लोग जो खड़े होके देखते हैं, सिर्फ दे डू नॉट डू एनीथिंग, दे जस्ट वॉच द थिंग, बाई स्टैंडर्ड, ठीक है, उससे भी रिड्यूस होता है प्रो सोशल बिहेवियर। देन प्रो सोशल बिहेवियर और भी कई फैक्टर्स हैं जिनसे कि रिड्यूस हो जाता है, जैसे पर्सन का बैड मूड ही खराब है, तो अगर कोई मदद के लिए आया, मूड इतना ज्यादा खराब है, नहीं किया आपने। बीइंग बिजी विद हिज ओन प्रॉब्लम, आप अपने ही प्रॉब्लम में बिजी हो, तो उससे भी आप नहीं कर पाते हो प्रो सोशल बिहेवियर। फीलिंग दैट पर्सन टू बी हेल्प्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन सिचुएशन।
आपको कभी कभी ये भी लगता है कि जिसकी आप मदद कर रहे हो वो खुद भी रेस्पॉन्सिबल, मतलब बेसिकली सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यहाँ आ रही है। आपको लगता है कि वो पर्सन खुद अपनी इस सिचुएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये एट्रीब्यूशन होने की वजह से भी आप प्रो सोशल बिहेवियर नहीं करते हो। तो प्रो सोशल बिहेवियर कई कारणों से, कई फैक्टर्स से अफेक्ट हो रहा है। बाई स्टैंडर्ड से, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बैड मूड से, आप अपने काम में ही बिजी हो इसलिए, आपका एट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है उससे भी हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिएक्शन से हो रहा है, आपके कल्चर फैक्टर से हो रहा है, आपकी लर्निंग से हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट फैक्टर से हो रहा है, आपके इनबॉर्न टेंडेंसी है कि नहीं है उससे हो रहा है, और आपके सोशल नॉर्म से हो रहा है। सो ये कुछ फैक्टर हैं जिससे कि प्रो सोशल बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है। एक और पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथेटिक एटीट्यूड न होने की वजह से भी प्रो सोशल बिहेवियर नहीं होता। आई थिंक आप सभी को एम्पैथी मालूम है। एम्पैथी क्या होता है? यू ऑल नो अबाउट द एम्पैथी मीन्स पुटिंग वनसेल्फ इनटू समवन शूज। किसी अपने आप को उसकी प्रॉब्लम पे रख के दे तो तब आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे। तो बहुत से लोगों में वो एटीट्यूड ही नहीं होता, तो वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कर पाते हैं। जैसे एम्पैथेटिक एटीट्यूड मदर टेरेसा में था। मदर टेरेसा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड। ओके, तो शी हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई होप चिल्ड्रन you understand from this video very properly about the pro-social behavior, क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या फैक्टर है जो कि प्रो सोशल बिहेवियर एक्टिवेट नहीं होता या नहीं शोन होता। ठीक है, सो आई जस्ट से थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर ऑल टुडे। वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर केयरफुली लिसनिंग टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।